اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قانون مفرد اعضاء کے اطباء کرام، طلباء و طالبات، آج ہماری تربیتی نشست کا چوتھا دن ہے۔ ہم نے اب تک نبض کے حوالے سے جتنے بھی بات کو سمجھا ہے اس میں دوبارہ سے مختصر سا احوال یہ ہے کہ پہلے پہل ہمیں نبض کو پرکھنے کا، نبض پر انگلیاں رکھنے کا سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا تھا ایک پین لیجئے اور اس میں اپنے پوروں کے وزن کو ایک جیسا رکھنے کی پریکٹس کیجیے۔ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے اطباء کرام یہ کہتے ہیں کہ جی نبض پہلے پورے پر نہیں مل رہی، باقی کے پوروں پر مل رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی پہلے 2 پوروں کو چھوڑ کر باقی کے پوروں پر مل رہی ہے۔ یہ بات جب وہ کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ اپنے پوروں کا دباؤ پہلے دوسرے پورے پر زیادہ یا دوسرے تیسرے پورے پر زیادہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پر زیادہ ڈالتے ہیں وہاں پھر انہیں نبض کا احساس نہیں ہو رہا۔ تو ہمیشہ برابر پریکٹس کیجیے پین پر، جب تک کہ آپ کو اپنے پوروں کو ایک جیسا بغیر آگے پیچھے دباؤ کے رکھنے کی مکمل مشق کرنے سے، پریکٹس کرنے سے آدمی بالکل اپنے اس کام میں پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرا میں نے بتایا تھا نبض کے مقامات کے اعتبار سے کچھ کنفیوژن میرے خیال میں ابھی بھی موجود ہے۔ دیکھیے نبض کی تشخیص صحیح ہو گئی ہم سے تو علاج بھی صحیح تجویز ہوگا، علاج صحیح تجویز ہوگا تو پھر مریض بھی ٹھیک اور آپ کا نام بھی، قانون مفرد اعضاء کا بول بالا بھی۔ تو نبض کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی یہاں پر ہم آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے نبض کے جو مقامات ہیں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک کمرہ ہے، کمرے کی ایک چھت ہے اور کمرے کے نیچے زمین ہے۔ کمرے کی چھت اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ منخفض ہے۔ منخفض کہتے ہیں نیچے کو، اوپر سے نیچے، جیسے ضد ہے نا، لمبائی کی ضد، طویل کی ضد قصیر کہہ دی ہم نے، موٹی کی نبض پتلی کہہ دی ہم نے۔ اسی اعتبار سے شرف کی ضد ہے منخفض۔ شرف کہتے ہیں بلندی کو، منخفض کہتے ہیں نیچے کو، اونچا نیچا، بلند پست۔ پست کا مطلب ہرگز گہرائی نہیں ہے۔ تو منخفض کے درجے کو سمجھنے کے لیے چھت اور زمین کے درمیان کا جو کچھ ہے اس کو سمجھیے کہ یہ منخفض ہے۔ اب اس کی مزید جو 2 قسمیں ہم نے کی تھی اس کو سمجھیے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں آپ کو دوسرا مقام، وہ یوں سمجھیے کہ چھت کے قریب جو چیز ہے وہ ہے پنکھا۔ پنکھا زمین سے دور ہے اور چھت سے قریب ہے اس کمرے میں۔ یہ مقام دوم ہے نبض پر، یعنی دوسری جو مقام ہم دیکھ رہے ہیں وہ سطح کے قریب ہوتا ہے اور ہڈی سے دور۔ پھر ہمارے پاس آیا منخفض کا جو دوسرا حصہ ہم کہہ رہے ہیں، جو مقام تیسرا ہم کہتے ہیں نبض میں، وہ سمجھیے یہ ٹیبل ہے یا یہ کوئی کرسی ہے۔ یہ چھت سے تو دور ہے مگر زمین سے قریب ہے، یعنی وہ نبض، وہ مقام جو ہڈی سے قریب ہوگا اور سطح سے دور ہوگا، وہ ہمارے تیسرے مقام کو ہم نے یاد دہانی کرنی ہے۔ اور جو بالکل ہڈی کے ساتھ لگ جائے، یعنی وہ زمین کے ساتھ ہے، بالکل زمین کے ساتھ ہے، وہ عمیق ہے، ہڈی کے ساتھ ہے۔ تو نبض جانچتے ہوئے جب آپ نے مریض کی شریانوں پر ہاتھ رکھا تو آپ نے اس کو ٹٹولنا ہے۔ بعض مریضوں کی جلد یا پھر جسم موٹا ہوتا ہے اور بعض ہمارے پاس بالکل پتلے آتے ہیں، تو آپ نے ٹٹولنا ہے کہ یہ اس کی سطح اور یہ اس کا ہڈی کا مقام، سطح اور ہڈی کے درمیان یہ جتنا بھی فاصلہ ہے، آپ نے اب ان دونوں کے درمیان اس احساس کو کرنا ہے کہ یہاں میرا پہلا مقام تھا، بالکل شرف میں تھا، ہلکا دبایا تو نبض ملی، نہیں ملی تو تھوڑا اور دبایا ہڈی سے اوپر رکھتے ہوئے، وہاں نبض مل گئی تو وہ تیسرا مقام ہو گیا۔ اگر وہاں نہیں ملی، بالکل آپ ہڈی کے ساتھ چپک گئے اپنے پوروں کے ساتھ اور وہاں نبض ملی، تو یہ آپ نے
मैंने याद कराया था कि जो शर्फ में हमारे पास नब्ज़ें हैं कानून मुफीद रज़ा की पहली, दूसरी और तीसरी, आप लोगों को तहरीकें तो पता होंगी, 6 तहरीकें हैं। असाबी उज़लाती, उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी, ये 3 तहरीकें हमें शर्फ में मिलती हैं। गुद्दी उज़लाती हमें दूसरे मकाम पर मिलती है जो कि सतह, जिसका रुजू सतह के करीब होता है, और तीसरे मकाम पर हमें 5 नंबर नब्ज़ मिलती है जिसका रुजू हड्डी के करीब होता है, और बिल्कुल एक आखिरी हड्डी के मकाम पर हमें 6 नंबर की नब्ज़ मिलती है जिसे असाबी गुद्दी कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गई बात, तो फिर अब आगे की बात है। जो मॉडर्न साइंस है वो ये कहती है कि एनर्जी की एक किस्म दूसरी किस्म में तब्दील होती रहती है और वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। यानी कि क़ुव्वत है, उसको हरकत देते हैं तो उससे हरारत पैदा हो जाती है। क़ुव्वत से हरकत और हरकत से हरारत पैदा होती है। साबिर साहब फरमाते हैं कि नब्ज़, मरीज़ की जब हम नब्ज़ देखते हैं तो दरअसल हम उसकी क़ुव्वत, हरकत और हरारत को महसूस करते हैं कि क्या इसमें क़ुव्वत बढ़ी हुई है या इसमें हरकत की ज़्यादती है या इसमें हरारत की ज़्यादती है या फिर कमी है। कल जब मिक़दार के हवाले से हम बात कर रहे थे तो मिक़दार में हमने ये बताया कि मिक़दार के अंदर किसी भी नब्ज़ की तवालत, उसका अर्ज़ और उसका शर्फ, लंबाई, चौड़ाई और बुलंदी, इन 3 एतबार से हमने मरीज़ की नब्ज़ देखी थी। तवालत के एतबार से ये 4 पोरे हमने जहन में रखने हैं। जो 4 पोरों तक थी नब्ज़, लंबी नब्ज़ थी, वो हरारत पर ज़्यादती थी, यानी मरीज़ के जिस्म में गर्मी बढ़ रही है। और जो नब्ज़ तवील नहीं थी बल्कि उसके मुकाबले में छोटी थी, 1 पोरे पर थी, इसमें हरारत की कमी वाक़िया हो गई थी। यानी हरारत कहीं ना कहीं मौजूद तो होती है मगर उसकी इतनी कमी होती है कि सर्दी गालिब आ जाती है। मौसम सर्दा में देखें, मैं एक बात अपने मरीज़ों से कहा करती हूँ कि आपके अंदर सर्दी है, जैसे मौसम सर्दा में सर्दी होती है, वहाँ भी मौसम में हल्की हरारत होती है लेकिन इतनी कम हरारत होती है कि वो गालिब नहीं आ सकती, सर्दी गालिब होती है। तो आपके जिस्म में भी सर्दी गालिब है। अगर हरारत बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे तो फिर तो मौत है। ठंड में तो मौत है और हरारत में ज़िंदगी है। तो यहाँ समझिए कि कसीर नब्ज़ सर्दी पर दलालत करती है, यानी हरारत की कमी हो गई है, और तवील नब्ज़ हरारत की ज़्यादती को बताती है। आसाबी उज़लाती कानून मुफीद रज़ा में जो 1 नंबर की नब्ज़ है वो कसीर है, और 4 नंबर की नब्ज़ तवील नब्ज़ है जो कि हमने गुद्दी उज़लाती नब्ज़ को कहा होता है। उसके बाद मैंने अरीज़ के हवाले से बताया था कि अरीज़ नब्ज़ जो मोटी चौड़ी होती है, तरी से पुर होती है, और उसके मुकाबले में जो नब्ज़ हमने देखी वो थी ज़य्यक, बारीक धागे की तरह। वो खुश्की की वजह से जिस्म के अंदर नसें जो होती हैं वो खुश्क होकर पतली हो जाती हैं, धागे की तरह बारीक हो जाती हैं। तो 6 नंबर अरीज़ नब्ज़ है कानून मुफीद रज़ा के तहत, मोटी और तरी वाली नब्ज़ है जिसे असाबी गुद्दी कहते हैं। और ज़य्यक नब्ज़ हमारे पास 3 नंबर की नब्ज़ है जिसे उज़लाती गुद्दी बारीक नब्ज़ कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था शर्फ के बारे में, यानी बुलंदी और पस्ती, ऊंची और नीचाई, ऊंचाई और नीचाई। तो इसमें यह है कि जो नब्ज़ आपको बिल्कुल सतह के करीब मिल रही है, हाथ लगाते ही महसूस हो गई है शर्फ के एतबार से, तो वो नब्ज़ हमारे पास हरकत की ज़्यादती जो बताती है वो हमारे पास है 2 नंबर की नब्ज़, जो कि पहले ही मकाम पर मिलती है। हरकत की इसमें ज़्यादती होती है, खून इसमें जोश मार रहा होता है, और जो हरकत में कमी वाक़िया होती है, उज़लात कमज़ोर हो चुके होते हैं, वो 5 नंबर की तहरीक है जिसका मकाम याद होगा कि 3 नंबर बताया गया था। तो जनाब आला, ये एक मुख्तसर सी तफसील जो कि कल की नब्ज़ों में समझाई थी। बाद लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ कन्फ्यूजन मौजूद है। आज मैं चाहती हूँ कि इन नब्ज़ों को 5 अदवार से जो हम परखेंगे, मरीज़ की नब्ज़ देखते हुए अगर ये बातें आपके जहन में हर वक्त मौजूद होंगी तो इंशाअल्लाह फिर आप कभी भी ये नहीं चूक पाएंगे
पाएंगे कि कानून मुफरद अज़ा में नब्ज़ आपने देखी और आपने कहा हो कि ये कोई गलती मुझसे रह गई है। जब समझ कर सही तशख़ीस से अपनी तरफ से इलाज दे देंगे तो फिर अल्लाह ताला उसमें रहमत करता है। जब आपका जहन ही मुतमईन नहीं है तो फिर मरीज़ को कहाँ शिफायाबी आपके हाथों से होगी। तो सबसे पहले हमें नब्ज़ कानून मुफरद अज़ा की 6 नब्ज़ें देखने के लिए 5 किस्म की मराहिल हैं जिन्हें आपने जहन में रखना है। सबसे पहले आपने किसी भी नब्ज़ की मकाम को याद रखना है, फिर उसमें दूसरे नंबर पर उसकी तवालत को याद रखना है, तीसरे मरले पर उसकी अर्ज़ को याद रखना है, चौथे मरले पर आपने उसकी रफ्तार देखनी है और सबसे आखिर में आपने उस मरीज़ की लम्स को महसूस करना है। आज हम बात कर रहे हैं असाबी उज़लाती के हवाले से इन 500 चीज़ों को बयान करते हैं। 5 चीज़ें ज़हन नशीन हो जाएं कि मकाम, रफ्तार, मकाम, तवालत, अर्ज़, रफ्तार और लम्स। तो असाबी उज़लाती, हुक्म रसां असाब, सर्दी का गलबा मकाम के एतबार से एक पोरे पर होगी, तवालत के एतबार से एक पोरे पर, शर्फ के एतबार से पहले मकाम पर, अर्ज़ के एतबार से ये अर्ज़ बताया था कि अर्ज़ जांचने के लिए ये अंदाज होगा हमारा एक पूरा कोटा। अगर आधे से पीछे होगा तो वो बारीक हो जाएगी, आधे पर वो मोतदिल हो जाएगी, आधे से ज़्यादा बड़ी हुई होगी तो वो मोटी या अरीज हो जाएगी। तो अर्ज़ नापने के लिए इन पोरों का हिसाब रखना था। अगर असाबी उज़लाती की बात करें तो ये तकरीबन आधे पोरे से थोड़ी कम होती है, जिसे कदरे बारीक आप कह सकते हैं। अर्ज़ के एतबार से ये कदरे बारीक होगी, मकाम के एतबार से शर्फ में होगी, तवालत के एतबार से एक पोरा होगी, रफ्तार के एतबार से तेज़ होगी, सुस्त नहीं होती है नब्ज़, ये अक्सर छोटे बच्चों की होती है और बड़ी तेज़ चलती है। और उसके एतबार से लम्स के एतबार से आपने देखा होगा कई बार मरीज़ की नब्ज़ देखते हैं और जो लोग अभी प्रैक्टिस में नहीं हैं वो कभी आने वाली ज़िंदगी में जब देखेंगे कि मरीज़ की नब्ज़ जब देखते हैं तो लम्स उसका ठंडा होता है, जिल्द उसकी ठंडी होती है। तो ये असाबी उज़लाती नब्ज़ की पहचान है कि मरीज़ का जिस्म ठंडा होगा लम्स के एतबार से, रफ्तार में ये तेज़ होगी और ये अर्ज़ में कदरे बारीक होगी, ये मकाम के एतबार से सबसे ऊंची होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं उज़लाती असाबी नब्ज़ की। उज़लाती असाबी जिसे 2 नंबर कहते हैं, जो इरादी उज़लात हमारे देखती है, ये एक कीमियाई तहरीक है दिल की। इसके अंदर अगर हम मकाम की बात करें तो बिल्कुल शर्फ में 2 पोरों पर, शर्फ में 2 पोरों पर हाथ रखते ही आपको महसूस हो जाएगी। अर्ज़ इसका भी कदरे बारीक है क्योंकि जब सोदावियत जिस्म में बढ़ती है, जिस्म में सोदा का गलबा होता है और बीमारियां लाक होती हैं तो नब्ज़ सुकड़ जाती है, कदरे सुकड़ी हुई होती है। इसकी रफ्तार जो है वो भी कदरे तेज़ होती है। उसके अलावा इसका लम्स खुरदरा होता है, खुरदरा। आपने देखा होगा कि जो खुश्क जिल्द के लोग हैं, जिन ड्राई स्किन कहते हैं, बाज़ उनको ऐसे रूखा सा खुरदरा सा मलाइम नहीं होती जिल्द, या बाज़ू का सर्दियों में जब जिल्द हल्की हल्की फटती है उस पर भी हाथ रखें तो आपको महसूस होती है खुरदरापन है। इसमें भी लम्स जो है वो खुरदरापन का होता है। अब इसके बाद हमने 2 नंबर को दोबारा याद कर लें कि 2 नंबर मकाम के एतबार से ऊंची होगी, तवालत के एतबार से 2 पोरे होगी, अर्ज़ के एतबार से आधे पोरे से कम की तरफ होती है, बारीक होती है कदरे, रफ्तार इसकी तेज़ होती है, कदरे तेज़ होती है और उसके अलावा ये लम्स में खुरदरी होती है। अब हम बात कर रहे हैं 3 नंबर नब्ज़ की, जो कि उज़लाती गुद्दी नब्ज़ है। इसको भी ज़हन नशीन कर लें कि जब इसको परखना है तो सबसे पहले इसका मकाम है। बताया था मैंने कि इसका मकाम बिल्कुल शर्फ में होता है, 3 पोरे पर होता है। जब खुश्की मज़ीद बढ़ जाती है तो ये 4 पोरों पर भी चला जाया करता है। रफ्तार इसकी तेज़ होती है, अर्ज़ इसका आधे से बहुत कम बारीक धागे की तरह होता है और इसका लम्स जैसे टाट या फिर वो सेबे की बोरी होती है, धागों वाली बोरी, अगर उस पर महसूस करें कदरे खुरदरा, ज़्यादा खुरदरा, सख्त खुरदरा, ये नब्ज़ आपको इस तरह से खुरदरी महसूस होती है।
3 नंबर नफ्स दोबारा ज़हन नशीन करें, शर्फ में होगी, तवालत इसकी 3 से 4 पोरे होगी, मकाम इसका हमेशा शर्फ रहेगा, अर्ज इसका धागे की तरह बारीक होगा, लुम्स के एतबार से ये खरदरी है और रफ्तार के एतबार से ये तेज़ नफ्स है। इसकी खासियत है कि ये सबसे ज़्यादा तेज़ सरी होती है। उसके बाद हम 4 नंबर की नफ्स की बात करें जो कि गुद्दी उजलाती नफ्स है, गुदुद जाज़बा और कीमियाई तहरीक की नफ्स है। इस तहरीक में मरीज़ की नब्ज़ का शर्फ बदल जाता है, मकाम बदल जाता है। पहली 3 नब्ज़ें हमें शर्फ में मिल रही थी, अब हमने इस सतह से हल्का दबाव डालना है, यानी कि ये जानिबे सतह होगी, रुजू इसका सतह के करीब होगा। जब हल्का दबाव डाला तवालत इसकी 4 पोरे होती है, मगर यहाँ याद रखिएगा कि जब मर्ज़ बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता है और बहुत ज़्यादा अज़ा इसमें बिगाड़ की तरफ जाते हैं तो ये नब्ज़ भी सुकड़ जाती है, 4 पोरों के बजाय ये 2 पोरों पर आ जाती है। और इसकी बात हम तब करेंगे जब मुरक्कब नब्ज़ों की बात करेंगे या फिर जब हम नब्ज़ों के सफ़र आपको बताएंगे। इस वक्त ये याद रखें कि ये 4 पोरों पर और 4 पोरों से भी बड़ी हुई होती है। जितनी ज़्यादा नब्ज़ बड़ी हुई होती है मरीज़ के अंदर उतनी गर्मी होती है। मकाम हो गया, इसका अर्ज क्या है, ये भी अर्ज के एतबार से मोतदिल के करीब करीब होती है, पर होती थोड़ी खुश्की की वजह से, क्योंकि गर्म भी है और खुश्क भी है, हल्की तंग ही होती है, या हम इसको कदरे बारीक कह सकते हैं। और इसकी रफ्तार मोतदिल होती है, तेज़ नहीं होती है। उसके अलावा ये नब्ज़ जो है लुम्स के एतबार से हार बता देती है। आपने देखा होगा बाज़ लोगों से दुआ सलाम करते हैं, बाज़ वक़्त नब्ज़ छूते हैं तो पता लगता है जिस्म गर्म हो रहा है। तो इसकी ये एक ख़ास सिफ़त है कि जिस्म मरीज़ का गर्मी की वजह से तप रहा होता है, हरारत वाला होता है। अब हमारे पास 5 नंबर की नब्ज़ है जिसके लिए मैंने मकाम बताना है। सबसे पहले मकाम पहला था, गौर कीजिएगा, ये पहला है हाथ रखते ही, हल्का दबाव दिया, ये दूसरा मकाम है, हल्का और दबाव दिया, ये तीसरा मकाम है, जो हड्डी के साथ नहीं, हड्डी के करीब है, ये टेबल ज़मीन के ज़्यादा करीब है। इस मकाम पर मुझे नब्ज़ मिलेगी 2 पोरों पर। बस औक़ात क्या होता है 2 पोरों से हल्की बड़ी हुई भी होती है, क्योंकि पोरे कमज़ोर हो सकते हैं तबीब के, या फिर मरीज़ के जिस्म में तहलील ज़्यादा हो गई है, इस वजह से 3 पोरों को कभी कभी छूती है ये नब्ज़। मगर अपनी रफ्तार के एतबार से ये नब्ज़ मोतदिल से ज़रा सुस्त होती है, हल्की सी सुस्त होती है। उसके अलावा अर्ज़ के एतबार से ये मोतदिल होती है, या ये कहें कि ज़रा आसाब और मोटाई के करीब होती है, या फिर ज़रा मोटी होती है। उसके अलावा लुम्स के एतबार से ऐसे जैसे पिलपिला होता है जिस्म, एक गुब्बारा लें उसमें हल्की भूख भरे, वो कैसे पिलपिला होता है, आम होता है, कैसे नरम नरम पिलपिली जल्द होती है, पोला होता है जिस्म। तो ये इसकी लम्स है, रफ्तार मैंने बता दी है कि ये हल्की सुस्त होती है। और इसका मकाम तीसरा होता है, तवालत इसकी 2 से 2.5 पोरे के दरमियान होती है। तो ये नब्ज़ आपको जब ये सब अलामात इकट्ठी हो जाएंगी, ये सब चीज़ें बैक वक्त नब्ज़ देखते हुए आपके जहन में होंगी, तो इंशाल्लाह आप नब्ज़ पर कामिल हो जाएंगे। सबसे आखिरी नब्ज़ हमारी रह गई है 6 नंबर की। 6 नंबर नब्ज़ आसाबी गुद्दी पैगाम रसा साब हवासे खमसा इसके अंदर आते हैं। तरी मैंने मकाम के बयान में बताया था मकदार की नब्ज़ में कि ये नब्ज़ हमें अरीज़ मिलती है, मोटी होती है, तरी से भरी हुई होती है। ये नब्ज़ तवालत के एतबार से 2 पोरे, कभी कभी 1 पोरा, कभी कभी 2 पोरे पे मिलती है। ये नब्ज़ मकाम के एतबार से बिल्कुल हड्डी के साथ चिपकी हुई होती है। ये नब्ज़ रफ्तार के एतबार से बहुत सुस्त होती है। 3 नंबर नब्ज़ बहुत तेज़ होती है और 6 नंबर नब्ज़ बहुत सुस्त होती है, ये इनकी खासियत है। और ये नब्ज़ लुम्स के एतबार से, लुमस के एतबार से चिपचिपी, ऐसे होता है ऑयली स्किन, चिपचिपी इस तरह की होती है। तो मैंने मकाम भी बता दिया 6 नंबर का, रफ्तार भी आपको बता दी, तवालत भी आपको बता दिया। अर्ज इसका बहुत मोटा होता है, फुल मोटी नब्ज़ है, पूरे पूरे पोरे को घेरती है। ठीक है, तो ये कानून मुफरिद अज़ा की ये वो चीज़ें थी जो इब्तदाई लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है सीखना।
اور جو پہلے سے نبض شناسی جانتے ہیں ان کا سبق پکا ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کو بہت عجلت ہے، میں نے گروپ میں میسیج دیکھے، پرسنل میں میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں، کیا آپ بس ہمیں علامات بتانا شروع کر دیں؟ کیا میں نبض نہ سکھاؤں آپ لوگوں کو؟ نبض پکی ہو جائے گی تو آپ کو علامات بھی ہم بتا دیں گے۔ تھوڑا سا ٹھنڈا ٹھنڈا کر کے کھاتے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ عجلت کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ جب آپ کی تشخیص مکمل نہیں ہوگی، جب آپ نبضوں کو سیکھیں گے ہی نہیں اور محض علامات پر گڈمٹ کرتے چلے جائیں گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تو نبضوں کے سفر بتانے ہیں، ابھی تو مرکب، کل میں نے اجناس کے بارے میں بات کی تھی، ابھی قرعہ نبض بتانی ہے۔ یہ وہ انداز ہیں جنہیں جاننے کے بعد مریض کی بیماری تک طبیب پہنچ جاتا ہے۔ نبض کی جو بولی ہے قرعہ کے حوالے سے، زمانہ حرکت کے حوالے سے، قوام اعلیٰ کے حوالے سے، یہی تو وہ بات ہے جو مریض کے اندر ہونے والی بیماری کا آپ کو بتائے گی۔ آپ لوگ عجلت سے کام مت لیجئے، تحمل کے ساتھ چلیے، مجھے اپنا کام کرنے دیجیے تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئے اور میں بھی آپ لوگوں کو سمجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔